Ankita Rai. In the previous class, we had discussed about the process of pyruvate oxidation and fermentation in the respiration in plants. हम लोगों ने ये देखा था कि किस तरीके से जो पायरुविक एसिड बन जाता है तो वो अगर उसको प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन मिलेगा तो वो एरोबिक रेस्पिरेटरी पाथवे में एंटर करता है, और जो सबसे पहला प्रोसेस एरोबिक रेस्पिरेशन में वो करता है दैट इज पायरुवेट ऑक्सीडेशन. And that pyruvate in that process of pyruvate oxidation हम लोगों ने ये देखा था कि पायरुविक एसिड का ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन हो रहा है in the presence of an enzyme called pyruvate dehydrogenase, and it is producing a 2-carbon molecule which is called acetyl coenzyme A. Now ये जो acetyl coenzyme A हमारा बन गया, तो now जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है या जो नेक्स्ट प्रोसेस है एरोबिक रेस्पिरेशन का, that is called citric acid cycle or Krebs cycle or tricarboxylic acid cycle. तो ये वो साइकिल है that was for the very first time elucidated by Hans Krebs. साइंटिस्ट Hans Krebs ने citric acid cycle या Krebs cycle को for the very first time उन्होंने ये elucidate किया था. एंड इसको citric acid cycle या tricarboxylic acid cycle हम इसीलिए बोलते हैं because the first synthesized product of this cycle is a 6-carbon molecule. वो 6 कार्बन का कंपाउंड होता है. It's a 6-carbon molecule which is called citric acid, in other terms also called as tricarboxylic acid. इसलिए हम इसको citric acid cycle या tricarboxylic acid cycle बोलते हैं. So we'll be dealing with this part of aerobic respiration. Now this citric acid cycle or tricarboxylic acid cycle ये mitochondrial matrix में अकर करता है. So it's a pathway that occurs in the mitochondrial matrix. And इसका जो overall reaction जब हम देखते हैं या जो overall reaction की बात करते हैं, तो जो acetyl coenzyme A molecule हमारा बना था pyruvate oxidation process के through, that acetyl coenzyme A molecule ultimately enters into this pathway, and this acetyl coenzyme A is actually accepted by a 4-carbon molecule which is oxaloacetic acid. और तब फिर हमारा ये 4-carbon का molecule plus 2-carbon molecule of acetyl CoA दोनों combine करते हैं, and it results into the formation of a 6-carbon product which is citric acid or tricarboxylic acid. Now इसका जो net result होता है, जब हम net result की बात करते हैं, तो the net result of this cycle is that कि for every molecule of acetyl group entering into this pathway as acetyl CoA, every 2 carbon dioxide molecule is released out. कहने का मतलब ये कि हर क्योंकि हमारा जो पायरुविक एसिड बना था सिंस ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस के थ्रू हमें 2 पायरुविक एसिड मिले थे मॉलिक्यूल्स, एंड एक पायरुविक एसिड से हमें एक एसिटाइल कोएंजाइम ए मॉलिक्यूल मिलता है थ्रू पायरुविक ऑक्सीडेशन प्रोसेस. तो सिंस एक पायरुविक एसिड से हमें एक एसिटाइल कोएंजाइम ए मिल रहा है, सो 2 पायरुविक एसिड से हमें 2 एसिटाइल कोएंजाइम ए मिलेंगे. सो ये जो एसिटाइल ग्रुप होता है जो कि एंटर करता है पाथवे में सिट्रिक एसिड साइकिल में एज एसिटाइल CoA मॉलिक्यूल और एज कोएंजाइम एसिटाइल कोएंजाइम ए, तो वो अल्टीमेटली 2 कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल को लिबरेट आउट करेगा थ्रू ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन प्रोसेस. तो इसका नेट रिजल्ट क्या है या जो सारे प्रोसेस हैं, आई एम जस्ट गोइंग टू पेन डाउन द पाथवे. मैं एक साइकिल बनाऊंगी एंड दैट उस साइकिल्स में कौन कौन से एंजाइम्स हैं या कौन से प्रोसेस में ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन हो रहा है, क्या नेट रिजल्ट निकल रहा है, वो हमें पता चलेगा. सो विल स्टार्ट विद सिट्रिक एसिड साइकिल. तो इसे हम Krebs cycle इसलिए बोलते हैं because it was elucidated by Hans Krebs, and it is also called as tricarboxylic acid cycle. ये जो हमारा पहला प्रोडक्ट बनता है इस साइकिल का वो एक 6 कार्बन प्रोडक्ट होता है, that is called as citric acid. So ये मैंने ऑलरेडी बता दिया कि इस साइकिल में हर जो एसिटाइल ग्रुप एंटर करेगा, so for every acetyl group entering into this pathway as acetyl CoA, every 2 molecules of CO2 जो होता है वो रिलीज होता है इस पाथवे से. इसमें एक पिक्यूलियरिटी इस पाथवे की ये है कि इस पूरे पाथवे में जितने भी एंजाइम्स, रिएक्टेंट्स एंड इंटरमीडिएट्स, दैट मीन्स ऑल द एंजाइम्स, रिएक्टेंट्स एंड intermediates of this pathway, they are all localized and they are all confined
and found in the mitochondrial matrix except one enzyme, and that is called succinate dehydrogenase. Now this is an enzyme जो कि एक स्टेप का कन्वर्जन कराता है सिट्रिक एसिड साइकिल में, वो हम अभी डिस्कस करेंगे when I'll be drawing the cycle. तो ये एंजाइम एक ऐसा सिंगल एंजाइम है which is not found in the mitochondrial matrix, rather than it is found in the inner mitochondrial membrane of mitochondria. तो ये इनर मेम्ब्रेन जो होता है माइटोकॉन्ड्रिया का, उसमें पाया जाता है, एंड इट इज नॉट फाउंड इन द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, राइट. दिस इज बिकॉज द रीजन इज ये जो सक्सिनेट डीहाइड्रोजनेज एंजाइम होता है, दिस एंजाइम इज एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल और इट एक्चुअली इज अ कॉम्पोनेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स 2 ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम. तो ये क्रूशियल पार्ट है, इट्स अ कॉम्पोनेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स 2. इट एक्चुअली फॉर्म्स द कॉम्प्लेक्स 2 of the electron transport system or electron transport chain, and that's why वो जो enzyme है वो confined होती है inner mitochondrial membrane. So citric acid cycle का जो net result हमें मिलता है वो मिलेगा 3 molecules of NADH, 1 molecules of FADH2 and 1 molecule of ATP और GTP. ये किस तरीके से लिबरेट हो रहा है या कौन से स्टेप में इनका फॉर्मेशन होता है, once I'll be drawing the citric acid cycle, ये उसमें पता चल जाएगा. तो ये अब हम ये मैंने ओवरव्यू लिखा था कि किस तरीके से रिएक्शन प्रोसीड होती है या क्या रिएक्शन होगा या क्या की पॉइंट्स हैं सिट्रिक एसिड साइकिल के. तो ये मैंने सारे की पॉइंट्स दे दिए हैं, एंड नेक्स्ट हम अब सिट्रिक एसिड साइकिल को ड्रॉ करेंगे. So this is the entire TCA cycle or the pathway of TCA cycle that ultimately results into the formation of citric acid. हमें citric acid इसमें मिलता है, and then कौन-कौन से steps में FADH2 molecule हमें मिल रहा है या NADH molecule will be discussing it. So इतना जो process है pyruvic acid to acetyl CoA का जो ये pathway है, this pathway of formation of acetyl CoA, this pathway is actually the pyruvate oxidation process. तो ये पायरुवेट ऑक्सीडेशन का इतना प्रोसेस है, पाथवे है, जहां पे हमारा पायरुविक एसिड, ये हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था कि पायरुविक एसिड एसिटाइल CoA में चेंज होगा 3 कार्बन टू 2 कार्बन में, क्योंकि यहाँ पर एक ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन हो रहा है, तो यहाँ पर एक कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल रिलीज हो रहा है. सो इतना हमारा पायरुवेट ऑक्सीडेशन का प्रोसेस है ना. वंस दिस एसिटाइल कोएंजाइम A विल बी रिलीज्ड इन द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, ये फिर अल्टीमेटली एंटर करता है दिस सिट्रिक एसिड साइकिल और क्रेब्स साइकिल में, जो कि माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में ही ऑपरेटिव होता है. नाउ एंटर अगर ये कर रहा है, सो देयर विल बी सम ऑफ द अदर एक्सेप्टर मॉलिक्यूल जो इसको एक्सेप्ट करे. तो यहाँ पर जो एक्सेप्टर मॉलिक्यूल इसको एक्सेप्ट करेगा दैट विल बी ऑक्सैलोएसिटिक एसिड. ये 4 कार्बन का मॉलिक्यूल होता है जो इसको एक्सेप्ट करेगा. नाउ दिस 4 कार्बन प्लस 2 कार्बन विल कंबाइन to give rise to a 6 carbon molecule. ये 6 कार्बन का मॉलिक्यूल बनाता है with the help of an enzyme called citrate synthase, right? Now ये citric acid बन गया. Now इसी citric acid का अब 2 steps में isomerization का process होगा. So this citric acid undergoes isomerization to form first cisaconate. यहाँ पर ये cisaconate बनाता है, and then it undergoes the hydration process. यहाँ पे आपका hydration process होता है, and it will again form isocyclane. Alright, तो यहाँ पे ये isomerization and hydration process के through isocyclate बनाया. Now once this isocyclate is formed, यहाँ पर अब successor decarboxylation होना शुरू होगा. यहाँ पर first step of oxidative decarboxylation हुआ. Now ये this is the first step of oxidative decarboxylation. This is the second step of oxidative decarboxylation. यहाँ पे ये first and second जो steps हैं, first and second, they are marking oxidative decarboxylation. Alright. So with the release of CO2, NADH भी हमारा प्रोड्यूस हो रहा है, इसमें NADH के मॉलिक्यूल्स भी प्रोड्यूस हो रहे हैं.
तो यहाँ पे आइसोसाइक्लेट था, अगर उसका ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन हुआ तो 6 कार्बन में से सिर्फ हमारे 5 कार्बन बने, एंड दैट 5 कार्बन मॉलिक्यूल इज कॉल्ड अल्फा कीटोग्लूटरेट, उसको हम अल्फा कीटोग्लूटरेट बोलते हैं। दिस अल्फा कीटोग्लूटरेट विल अगेन अंडरगो ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन टू यील्ड सक्सिनिल COA। तो ये 5 कार्बन जो था, अब नाउ दिस 5 कार्बन विल अल्टीमेटली गेट कन्वर्टेड इनटू अ 4 कार्बन कंपाउंड और मॉलिक्यूल व्हिच इज कॉल्ड सक्सिनिल COA, राइट। यहाँ पे भी वही प्रोसेस हुआ। नाउ दिस सक्सिनिल COA अल्टीमेटली फॉर्म्स सक्सिनेट, ये सक्सिनेट बनाता है with the help of enzyme succinate dehydrogenase that we have discussed earlier। इसी लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि ये वही एंजाइम है सक्सिनेट dehydrogenase which is not found in mitochondrial matrix. This is actually confined to the inner mitochondrial membrane as it is a component of complex 2 of electron transport chain. Now ये वही वो एंजाइम है। Now इसी स्टेप में like succinyl COA to succinate, इस स्टेप में एक सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन होता है, and that substrate level phosphorylation results into the formation of one molecule of ATP। तो यहाँ ATP भी बन सकता है और it can be either GTP also। So ये हमारा substrate level phosphorylation यहाँ पे हुआ और उसकी वजह से मेरा एक molecule of ATP यहाँ पे produce हुआ है। Alright, now this succinate gets converted into fumarate। This is also a 4 carbon molecule। Now this changes to fumarate with the help of reducing, और यहाँ पर हमारा एक reducing agent रिलीज होता है and that is called FADH2। यहीं पर हमारा FADH2 रिलीज होगा, right? So it can be either written as like this rather। Alright, so ये fumarate will change into malate, isomerize into malate। Malate will ultimately get converted or isomerized into oxaloacetic acid। ये फिर oxaloacetic acid में change होगा और यहाँ पे हमारा 1 molecule of and ये जो रिड्यूसिंग एजेंट जो होगा मैलेट से ऑक्सैलोएसिटिक एसिड में जो रिड्यूस करेगा, यहाँ पे हमारा एक मॉलिक्यूल NADH का भी यहाँ पे रिलीज होगा। सो इन दिस एंटायर साइकिल अगर हम देखें तो इस पूरे साइकिल में अगर हम सिर्फ साइकिल का कंपोनेंट देखें तो स्टार्टिंग फ्रॉम एसिटाइल COA, अगर हम एसिटाइल COA से शुरू करते हैं तो हमारा 1 मॉलिक्यूल, एक यहाँ पर NADH रिलीज हुआ, एक यहाँ पर रिलीज हुआ एंड एक यहाँ पे रिलीज हुआ। दैट मीन्स अ टोटल ऑफ 3 NADH हैज बीन रिलीज्ड और एक FADH2 यहाँ पे हमारा रिलीज हो रहा है। सो 1 FADH2 मॉलिक्यूल इज रिलीज एंड 1 ATP इज रिलीज थ्रू सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन। और कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल की अगर हम देखेंगे तो 1 कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल इज रिलीज्ड हियर एंड 1 इज रिलीज्ड हियर, यानी कि 2 कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल जो होता है हमारा रिलीज होता है अगर हम एसिटाइल COA से कंसीडर करते हैं देन। ऑलराइट, तो हमारा जो नेट रिजल्ट होगा, जो मैंने आपको ऑलरेडी स्टेटमेंट में लिखवाया था कि जो नेट रिजल्ट है इस साइकिल का, for every acetyl group entering into this pathway as acetyl coenzyme A is that 3 molecules of NADH are produced, 1 molecule of FADH2 is produced and 1 molecule of ATP is produced। But लेकिन अगर हम pyruvic acid से इसको consider करते हैं so this would be 4 NADH, क्योंकि इस NADH को भी हम include कर लेंगे। Alright, तो हमारा जो टोटल हो जाएगा वो 4 NADH की मॉलिक्यूल की बात हो जाएगी। So कहीं ना कहीं अगर हम रिएक्शन इसकी देखें, ऑलराइट, तो अगर हम पायरुविक एसिड से रिएक्शन ले रहे हैं तो पायरुविक एसिड से 4 हमारा NADH इन्वॉल्व, NAD+ इन्वॉल्व हो रहा है, 1 मॉलिक्यूल ऑफ FAD यहाँ पे इन्वॉल्व हो रहा है एंड 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर एंड देन ADP+ PI के प्रेजेंस में अगर हम लें सो हमें मिलेगा नेट रिजल्ट। पायरुविक एसिड से हमें सिट्रिक एसिड मिला तो ये सिट्रिक एसिड हो जाएगा, देन 4 NADH+ H+, 1 molecule of FADH2 and 1 molecule of ATP हमें इसमें मिलेगा। So this is the net reaction of citric acid cycle। तो हमें ये टोटल एक तरीके से ओवरव्यू मिल गया सिट्रिक एसिड साइकिल का या क्रेब्स साइकिल का, जो कि ऑपरेटिव होता है माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में। Alright, so in the next that's all for today। In the next lecture we will be discussing about electron transport chain। हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन एंड सिस्टम के बारे में डिस्कस करेंगे कि क्या है, मतलब क्या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम है या कौन कौन से कॉम्प्लेक्सेस इनमें इन्वॉल्व होते हैं, व्हाट इज actually the net output of this transport chain। So that's all for today। Thank you very much।